नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। आज का प्रैक्टिस टेस्ट रिवीजन सीरीज का सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज का। ICDS gives immunization services to children below 6 years, pregnant and lactating mother, both A and B, none of these. Correct answer is option C, both A and B. ICDS gives immunization services to children below 6 years and pregnant and lactating mothers. Next question. Pepsinogen secreted by chief cells, mast cell, beta cells, parietal cell. Correct answer is option A, chief cells. Next question. Normal bone cell is known as osteocyte, osteoblast, osteoclast, monocyte. Correct answer is option A, osteocyte. Next question. A 78-year-old client who has hypertension is beginning treatment with furosemide. Considering the client's age, what should the nurse teach the client to do? Limit fluids at bedtime, change positions slowly, take the medication between meals, assess the skin for breakdown daily. Correct answer is option 2, change positions slowly. Next question. A patient is admitted in a ward with prior MI attack. He complains of chest pain. The first action of the nurse is provide nitroglycerin sublingual, get an ECG done, order TROP-T, order an echo. Correct answer is option A, provide nitroglycerin sublingual. Next question. A nurse will keep in isolation a patient with bacterial meningitis for 24 hours after the initiation of antibiotic therapy, 12 hours after the initiation of antibiotic therapy, till culture negative after 12 hours of antibiotic given. Correct answer is option C, till culture negative. Next question. What is the name of the process by which the cervix becomes thin and indistinct from the body to the uterus? Dilation, attitude, effacement, transition. Correct answer is option C, effacement. Next question. A patient complaining of visual disturbance, the nurse knows it is the side effect of which drug? Ethambutol, pyrazinamide, rifampicin, lithium. Correct answer is option A, ethambutol. Next question. Calcium channel blocking agent used in the treatment of hypertension include prazosin, lidoflexin, captopril, verapamil. Correct answer is option D, verapamil. Next question. To avoid pulling the urinary catheter, it should be tapped on the patient's lower thigh. It should be tapped on the patient's upper thigh. It should be tapped on the patient's leg. Patient should carry the catheter when ambulating. Correct answer is option B. It should be tapped on the patient's upper thigh. Next question. A patient is on beta adrenergic blocking agent. Observation should a nurse make? Decrease in blood pressure, dyspnea, increase in heart rate, depression. Correct answer is option A. Beta blockers, also called beta blockers, are a class of medication that are predominantly used to manage abnormal heart rhythms and to protect the heart from a second heart attack after first attack. Next question. A potassium level of 5.4 milliequivalent per liter should alert the nurse to assess the patient for ECG changes, constipation, polyuria, hypertension. Correct answer is option A, ECG changes. Normal potassium level ranges from 3.5 millimole per liter to 5.1 millimole per liter in adults.
ECG changes of hyperkalemia includes peaked T wave, prolongation of PR interval, widening QRS complex, loss of P wave. नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर जल से बना है. ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ वाटर परसेंट, 100%, 60%, 10%, 40%. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 60%. निम्नलिखित में से किस निर्धारक का व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण पर सीधा प्रभाव पड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल? बिहेवियरल, एनवायरमेंटल, बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इन्वायरमेंटल. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीके के कारण टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है? विच वैक्सीन कैन कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम? डीपीटी, टिटनेस, बीसीजी, खसरा, मीजल्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मीजल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनाइजेशन इज ए प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी प्राइमरी प्रिवेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर किसी संगठन के प्रदर्शन में सुधार के इरादे से की गई कई परियोजनाओं के प्रबंधन की प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है? प्रोग्राम मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्रोग्राम मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्सरी अस्पताल में उच्च गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन अपेक्षित जनशक्ति है? डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और सोशल वर्कर की एक इंटर प्रोफेशनल टीम, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट, डॉक्टरों और स्टाफ नर्स की एक टीम, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर और स्टाफ नर्स की एक टीम. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर की जो इंटर प्रोफेशनल टीम होती है यह टर्सरी हॉस्पिटल जैसे कि मेडिकल कॉलेज में अपेक्षित जनशक्ति मानी जाती है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, समय पूर्व प्रसव में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के मात्र व्यवस्थापन का लाभ है? भ्रूण के संक्रमण को रोकना, गर्भाशय के संरोध को रोकना, भ्रूण झिल्ली की अखंडता बनाए रखना, भ्रूण के फेफड़ों की परिपक्वता में मदद करना. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी भ्रूण के फेफड़ों की परिपक्वता में मदद करना. समय से पहले प्रसव के जोखिम वाली महिलाओं के प्रबंधन में प्रसवपूर्ण कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक आवश्यक घटक है. वे फेफड़ों की परिपक्वता को बढ़ावा देते हैं और अन्य समय पूर्व नवजात जटिलताओं के जोखिम को कम करते हैं. बीटामिथासोन और डेक्सामिथासोन सबसे व्यापक रूप से यूज किए गए कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं, मींस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं बेटनीसोल एंड डेक्सामिथासोन. और इन्हें नॉर्मली फीटस के अंग परिपक्वता मैच्योरिटी के में तेजी लाने के लिए प्रसव पूर्व उपचार के लिए प्राथमिकता दी गई है. दोनों अपने सक्रिय रूप में प्लेसेंटा को पार करते हैं और सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट रखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाइकल कैंसर और पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन का जल्द पता लगाने के लिए पैप स्मीयर और कॉल्पोस्कोपिक जांच एक उदाहरण है. तृतीयक निरोध, द्वितीयक निरोध, प्राथमिक निरोध या मौलिक निरोध. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन का टी एग्जाम्पल होता है. यदि सर्वाइकल कैंसर का पता लगाना है और तुरंत पैप स्मीयर और कॉल्पोस्कोपिक जांच की जाए तो यह क्या है? सेकेंडरी प्रिवेंशन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अस्पताल के संक्रमण का एक स्पष्ट स्रोत है जो हैंड लोशन में बढ़ता है? स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, स्यूडोमोनास, ई कोलाई. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्यूडोमोनास. स्यूडोमोनास पर्यावरण में पाया जाने वाला एक पैथोजन है. यह सिंक या बाथरूम जैसे नम क्षेत्रों में हो सकता है. यह शायद ही कभी अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग के बाहर बीमारी का कारण बनता है, मींस यह अस्पताल के अंदर सबसे अधिक बीमारी का कारण बनता है. यदि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, वीक है, खासकर यदि आप बहुत युवा अधिक उम्र के हैं तो आपको स्यूडोमोनास संक्रमण का खतरा हो सकता है. कैन कॉज इन्फेक्शंस इन द ब्लड, तो इससे जो इन्फेक्शन होता है कहां कहां हो सकता है? ब्लड में, लंग्स में और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आफ्टर सर्जरी.
नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत प्रदर्शन परीक्षण की जांच करने के लिए प्रयोग किया गया सर्वाधिक शोध प्रचलित प्रतिमान है सस्टेन्ड अटेंशन, selective attention, modes of processing, language dysfunction. Correct answer is option A, sustained attention. ESI योजना के अनुसार वित्तीय सहायता के लिए नियोक्ता और कर्मचारी का योगदान क्रमशः वेतन का होता है 2% और 3%, 4.75% और 1.75%, 1.75% और 4.75%, 3% और 2%। देखिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई सर्विस ज्वाइन करता है तो उसका एक नियमानुसार पीएफ कटता है। उस पीएफ में कुछ अंशदान कर्मचारी करता है और कुछ सरकार करती है। तो यहीं पे पूछा गया है कि कर्मचारी का योगदान कितना है और सरकार का कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4.75% और 1.75%। तो जो नियोक्ता का योगदान होता है यह होता है 4.75% और कर्मचारी का होता है 1.75%। ईएसआई अधिनियम के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों क्रमशः अपने शेयरों का योगदान करते हैं। भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत योगदान की दर तय करती है। वर्तमान में योगदान की दर वेतन का 6.5% तय की गई है, जिसमें नियोक्ताओं का हिस्सा 4.75% और कर्मचारियों का हिस्सा 1.75% है। यह दर 1/1/1997 से प्रचलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा सिद्धांत है जो बुद्धि को मुख्यतः सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रिया स्पेसिफिक कॉग्निटिव प्रोसेस के रूप में देखता है? वायगोत्स्की सिद्धांत, स्क्रिप्ट सिद्धांत, कोहेलबर्ग सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, वायगोत्स्की का सिद्धांत। यह एक ऐसा स्पेसिफिक कॉग्निटिव प्रोसेस के रूप में देखने वाला सिद्धांत है जो बुद्धि को, इंटेलिजेंसी को मुख्यतः सांस्कृतिक रूप से देखता है। वायगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए सोशियो कल्चरल प्रिंसिपल इसको बोलेंगे। तो ये सिद्धांत के नोन दिया था, वायगोत्स्की ने दिया था और ये जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया मीन्स सोशल इंटरेक्शन ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है, जो एक संस्कृति से दूसरे में भिन्न हो सकता है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोजिटरीज को निम्नलिखित में से किसे छोड़कर शेष सभी में डाला जा सकता है? यूरिथ्रा, वजाइना, एक्सियल, रेक्टम। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, एक्सिलरी सपोजिटरी नहीं आती है। शेष यहाँ पर जो भी ऑप्शन है ये सही है, इसमें सपोजिटरीज को डाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो एक्सप्लेनेशन है देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज, each to insert into a different section, rectal suppositories into rectum, vaginal suppositories into the vagina and urethral suppository into the urethra of a male. Next question, आपात घाव पर पट्टी बांधने की स्थिति में गांठ होनी चाहिए? घाव के ऊपर, घाव से दूर, घाव के नीचे, घाव के दाहिनी तरफ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, घाव के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रदर्शनी की मूल विशेषताएं क्या होती हैं? एक नाटक गतिविधि, यह कि इसका एक केंद्रीय विषय होना चाहिए जो एक विशेष अवधारणा पर केंद्रित हो, उच्च कक्षाओं में उपयोग किया जाता है, यह कि शिक्षक नेता होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यह कि इसका एक क्या होना चाहिए? सेंट्रल थीम होनी चाहिए और विशेष कोई भी विशेष इस पर फोकस होना चाहिए, किसी विशेष सब्जेक्ट पर इसका फोकस होना चाहिए। यह एक प्रदर्शनी की मूल विशेषता होती है। हॉस्पाइस इज द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट फॉर टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स, कार्डियक पेशेंट्स, साइकेट्रिक पेशेंट्स, ऑल ऑफ एबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द बोन इन पाम, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम? ह्यूमरस, रेडियो अल्ना,
carpals, metacarpals. Correct answer is option D, metacarpals. Next question. The gas used for ripening of green fruits in an artificial manner. हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एसिटिलीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the pH value of tears? आंसू का pH होता है 7.4, 8.5, 6.0, 7, 6.3. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 7.4. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? स्विच, कनेक्टिंग वायर, रेगुलेटर, नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कनेक्टिंग वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन? सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फैथोमीटर, यूडियोमीटर, बैरोमीटर, पेरिस्कोप. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फैथोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑम्फेलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ न्यूबॉर्न चिल्ड्रन. ऑम्फेलाइटिस नवजात बच्चों में संक्रमण है. फेरिंग्स, अम्बिलिकल कॉर्ड, आईज, ईयर्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑम्फेलाइटिस नवजात बच्चों में अम्बिलिकल कॉर्ड मींस गर्भनाल का इन्फेक्शन है. यह एक प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स रिएक्शंस में अकर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इरिथ्रोमाइसिन? इरिथ्रोमाइसिन देने से क्या विपरीत प्रतिक्रिया हो सकती है? वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज्ड वॉमिटिंग, डिजीनेस एंड वॉमिटिंग. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डिजीनेस एंड वॉमिटिंग, चक्कर आना और उल्टी होना. नेक्स्ट. होम विजिट्स ऑर्गेनाइज मेन फोकस. होम विजिट में होता है इंस्पेक्शन ऑफ होम एनवायरनमेंट, चेकिंग वर्क ऑफ अदर नर्सेस, डेमोग्राफिक सर्विस, प्रिवेंशन एंड एजुकेशन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंस्पेक्शन ऑफ होम एनवायरनमेंट. होम विजिट एक फैमिली नर्स कॉन्टैक्ट होता है जो आवश्यक नर्सिंग केयर और हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज को प्रोवाइड करने हेतु हेल्थ वर्कर को होम और फैमिली सिचुएशंस को एसेस करने के लिए अलाउ करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रथम नेशनल हेल्थ पॉलिसी निम्न में से किस वर्ष में बनाई गई? 1973, 1983, 1993, 2003. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1983. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस दौरान बनाई गई? ड्यूरिंग विच ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान वाज मेड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज? 1946, 1950, 1951 and 1952. Correct answer is option C, 1951. Next question. Fill in the blank. Occurs when the blood volume is reduced by 15 to 25%. यह तब होता है जब शरीर में रक्त 15 से 20% तक कम हो जाता है. सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवॉलेमिक शॉक. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हाइपोवॉलेमिक शॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सी पट्टी बैंडेज रुई से बनी होती है और एक ऊनी लोचदार पट्टी होती है? विच बैंडेज इज मेड ऑफ कॉटन एंड इज अ वूलन इलास्टिक बैंडेज? ऑप्शन ए, कन्फर्मिंग पट्टी, क्रेप पट्टी, खुली ऊनी पट्टी, चिपकने वाली पट्टी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्रेप बैंडेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लेसेंटा प्रीविया में किस प्रकार की ब्लीडिंग होती है? पेनलेस ब्राउन रेड ब्लीडिंग, पेनफुल रेड ब्लीडिंग, पेनलेस डार्क रेड ब्लीडिंग, पेनफुल येलो ब्लीडिंग. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पेनलेस ब्राउन रेड ब्लीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंटीपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया, बेंडल रिंग का बनना, एनीमिया, शिशु का अपूर्ण विकास. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्लेसेंटा प्रीविया. नेक्स्ट क्वेश्चन. While lifting a patient, a nurse bends on her. एक रोगी को बेड से उठाते समय नर्स मोड़ती है. हिप्स एंड बैक, हिप्स एंड नीज, बैक एंड नीज, बैक ओनली. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हिप्स एंड नीज. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. प्लेसेंटा इज मेनली फॉर्म
फ्रॉम विच स्ट्रक्चर प्लेसेंटा का निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है? एमनियन, कोरियन फ्रंडोसम, डेसिडुआ बैसिलिस, एलेंटॉयस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कोरियन फ्रंडोसम। तो यहां पर जो प्लेसेंटा का निर्माण है मुख्य रूप से पूछा गया है, मेनली पूछा जाए तो आपको कोरियन फ्रंडोसम आंसर लगाना है, और यदि प्लेसेंटा का निर्माण किससे होता है तो आपको ये दोनों आंसर लगाने होंगे। कोरियन फ्रंडोसम जो कि एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है, एम्ब्रियो का पार्ट होता है, और डेसिडुआ बैसिलिस ये मदर का पार्ट होता है। तो इस प्रकार से इसके आंसर भी बदल जाते हैं जब जैसा क्वेश्चन आपके सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति कितनी होती है? व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ अ न्यूबॉर्न? 80 to 100 बीट्स पर मिनट, 100 to 160 बीट्स पर मिनट, 60 to 90 बीट्स पर मिनट एंड 120 to 180 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है, नवजात होता है, उसकी हार्ट बीट होती है 100 से 160, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लेबर के दौरान सबसे पहले कौन सा संकेत दिखाई देता है? व्हाट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ लेबर? रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, सो ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन्स, सर्वाइकल डायलेशन। तो जब बात होती है लेबर के दौरान तो सबसे पहले एक सही प्रसव पीड़ा होगी, ट्रू लेबर पेन होगा, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही होगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोनेटल रिफ्लेक्स जो सबसे पहले गायब होता है वह है? विच नियोनेटल रिफ्लेक्स डिसअपियर्स फर्स्ट? सकिंग, मोरो, रूटिंग, बेबिंस्की। तो यहां पर जो सबसे पहले गायब होने वाला रिफ्लेक्स होता है वह होता है मोरो रिफ्लेक्स, और 3 से 4 माह में गायब हो जाता है। मोरो रिफ्लेक्स ऐसा रिफ्लेक्स होता है जिसमें अचानक बच्चा चौंक जाता है, अपने हाथ पैरों को तेजी से फैला देता है और उसको ऐसा एहसास होता है कि वह गिर रहा है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा गर्भावस्था का एक संभावित लक्षण है? आपको क्या बताना है? संभावित लक्षण बताना है। प्रिज्यूमटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, चैडविक साइन, हैगर साइन, नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड बेलॉटमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नोजिया एंड वॉमिटिंग। यह एक संभावित लक्षण है, प्रिज्यूमटिव साइन है, कंफर्मेटरी साइन नहीं होता है, क्योंकि नोजिया और वॉमिटिंग किसी से भी हो सकता है, कोई अन्य बीमारी से भी मितली और उल्टी की समस्या आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फॉली कैथीटर किस उद्देश्य से डिलीवरी से पहले डाला जाता है? वाई इज फॉली कैथीटर इंसर्टेड बिफोर डिलीवरी? टू चेक यूरिन इन्फेक्शन, टू एम्प्टी ब्लैडर, टू रिड्यूस लेबर पेन, टू स्टॉप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो लेबर के पहले फॉली कैथीटर डालने का उद्देश्य होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय है, वह पूरी तरह खाली हो सके, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अपगार स्कोर में स्किन कलर के लिए 0 कब दिया जाता है? व्हेन इज 0 गिवन फॉर स्किन कलर इन अपगार स्कोरिंग? इफ एक्सट्रीमिटीज आर ब्लू, इफ होल बॉडी इज पिंक, इफ होल बॉडी इज पेल और ब्लू, इफ बेबी इज जॉन्डिस्ड। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, इफ होल बॉडी इज पेल और ब्लू। यदि पूरा शरीर बच्चे का पीला पड़ जाए, नीला पड़ जाए, बच्चे का जो शरीर है उसकी त्वचा में गुलाबीपन ना रहे, पिंक ना रहे, तो इस प्रकार से जो अपगार स्कोर में स्किन कलर के लिए 0 मार्क्स दिए जाते हैं, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राथमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं है? Which of the following is not part of the primary immunization schedule? BCG, OPV, DPT, टाइफाइड। तो यहाँ पर BCG भी शामिल है, OPV भी शामिल है, और DPT टाइफाइड प्राइमरी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान सबसे सामान्य हार्मोन कौन सा है? Which hormone is most dominant during pregnancy? Estrogen, progesterone, oxytocin and prolactin. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोनेटल पीरियड किस अवधि को कहा जाता है? द नियोनेटल पीरियड रिफर्स टू विच ड्यूरेशन? फर्स्ट 24 आवर्स, फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 7 डेज, फर्स्ट 28 डेज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फर्स्ट 28 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस सप्ताह में भ्रूण की हृदय धड़कन अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले देखी जा सकती है? एट विच गेस्टेशनल वीक कैन फीटल हार्ट एक्टिविटी बी डिटेक्टेड अर्लीस्ट ऑन अल्ट्रासाउंड? 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। फीटल हार्ट सबसे पहले साउंड 6 सप्ताह में 6 वीक्स में देखी जा सकती है, डिटेक्ट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण में सबसे पहले कौन सी प्रणाली कार्य करना प्रारंभ करती है? विच सिस्टम इन द फीटस स्टार्ट्स फंक्शनिंग फर्स्ट? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले जो सिस्टम काम करता है वह होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, क्योंकि बच्चे का हार्ट सबसे पहले बनता है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूपेरियम की अवधि क्या होती है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्यूपेरियम पीरियड? 1 वीक, 6 वीक्स, 3 वीक्स, 9 वीक्स। तो करेक्ट आंसर होगा, प्यूपेरियम की जो अवधि होती है 6 वीक्स मींस 42 डेज की, इसलिए सी ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जीवन के पहले घंटे में नवजात को दिया जाने वाला टीका है? Which of the following vaccine is given to the newborn within the first hour of life? OPV, DPT, BCG, hepatitis B. Correct answer is ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस बी एक ऐसा टीका है जो 1 घंटे के अंदर जन्म के लगाया जाता है, और यदि ऐसा संभव नहीं है तो इसको 24 घंटे के अंदर देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव पीड़ा के दौरान इफासमेंट का अर्थ है? What does effacement mean during labor? Cervical opening, cervical thinning, uterine contraction, descent of the fetus। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, cervical thinning। नेक्स्ट क्वेश्चन, Montgomery's tubercles किस अंग में पाए जाते हैं? Montgomery's tubercles are found in which organ? Cervix, uterus, breast, placenta। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रेस्ट। मॉन्टगोमरी ट्यूबरकिल्स ये ब्रेस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली तिमाही में भ्रूण की सामान्य लंबाई होती है? व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ द फीटस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर? 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 12 सेंटीमीटर। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 weeks, fetal length is approximately 12 सेंटीमीटर। पहले ट्राइमेस्टर में जो कि 12 सप्ताह तक का होता है, उसके अंत तक जो एम्ब्रियो की लेंथ होती है, फीटल लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलॉटमेंट साइन किस अवस्था में पाया जाता है? बेलॉटमेंट साइन इज सीन इन विच कंडीशन? प्रीक्लेम्सिया, प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम हेमरेज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोथेरेपी में नवजात की आंखों को ढकने का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर कवरिंग द आईज ऑफ ए न्यूबॉर्न ड्यूरिंग फोटोथेरेपी? टू प्रिवेंट ड्राइनेस, टू रिड्यूस बॉडी हीट लॉस, टू प्रिवेंट रेटिनल डैमेज, टू एंश्योर स्लीप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट रेटिनल डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्टेशनल डायबिटीज की जांच किस परीक्षण से की जाती है? विच टेस्ट इज यूज्ड टू स्क्रीन फॉर गैस्टेशनल डायबिटीज? HbA1c, OGTT, फास्टिंग इंसुलिन एंड सीरम कीटोन्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, OGTT मींस ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्टोग्राफ में अलर्ट लाइन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ अलर्ट लाइन इन पर्टोग्राफ? मॉनिटर फीटल हार्ट, प्रिडिक्ट डिलीवरी टाइम, आइडेंटिफाई स्लो प्रोग्रेस ऑफ लेबर, रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आइडेंटिफाई स्लो प्रोग्रेस ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीहाइड्रामिनोस की स्थिति में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा होती है? In polyhydramnios, the amount of amniotic fluid is less than 500 ml, 500 to 1000 ml, greater than 2000 ml and 1200 ml. Correct answer is option C,
greater than 2000 ml. Next question. एक नर्स कार्डियक मॉनिटर को देखते हुए देखती है कि रिदम अचानक बदल गई है, पी तरंग नहीं है, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स चौड़े हो गए हैं, वह निलयीदार नियमित लेकिन 100 से अधिक है। नर्स निश्चित करती है कि मरीज क्या अनुभव कर रहा है। प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, साइनस टैकीकार्डिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की कंडीशन में इस प्रकार की ईसीजी देखने को मिलती है जिसमें कि क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है, चौड़े हो जाते हैं और जो वेंट्रिकुलर रेट होती है यह नियमित लेकिन 100 से अधिक हो जाती है, तो टैकीकार्डिया की कंडीशन होती है और पी वेव इसमें गायब हो जाती है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की कंडीशन में कि किस प्रकार से यहाँ पर पी वेव देखने को नहीं मिल रही है और जो क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स है इनके बीच में जो वाइडनिंग है वो बढ़ चुकी है। तो जब पी वेव गायब हो जाए और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में वाइडनिंग हो जाए तो ये कंडीशन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की कंडीशन होती है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट है मुख्य रूप से रिवीजन के लिए बनाया गया है और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपके जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण कपाल के मेंटोवर्टिकल डायमीटर की लंबाई कितनी होती है? 10.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 11.5 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउनीज स्कोर का उपयोग निम्नलिखित में से किसका आकलन करने के लिए किया जाता है? मधुमेह से पीड़ित माताओं के शिशुओं का मूल्यांकन, श्वसन संकट की गंभीरता, हाइपरबिलिरूबिनीमिया की गंभीरता, क्लासिफाई प्रीटर्म इन्फेंट्स। करेक्ट आंसर इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की सीवियरिटी में डाउनीज स्कोर का उपयोग किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपरिचित लोगों से भय को कहा जाता है? एक्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया, जीनोफोबिया, एगेरोफोबिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, जीनोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवजात शिशुओं के लिए सामान्य एक्सिलरी और रेक्टल टेम्परेचर कितना होता है? एक्सिलरी 37.2 से 37.9 डिग्री सेल्सियस और रेक्टल 37.5 से 38.4 डिग्री सेल्सियस। एक्सिलरी 36 से 36.5 डिग्री सेल्सियस और रेक्टल 36 से 36.5 डिग्री सेल्सियस। एक्सिलरी 37.5 से 38.5 डिग्री सेल्सियस और रेक्टल 37.7 से 38.7 डिग्री सेल्सियस। एक्सिलरी 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस और रेक्टल 36.7 से 37.9 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। एक्सिलरी टेम्परेचर होता है 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस और रेक्टल होता है 36.7 से 37.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Used or discarded disinfectants and discarded formalin are categorized under which of the following West categories? Red category, yellow category, black category and blue category. Correct answer is option 2, yellow category. Next question. रॉक्स एंड बाईपास सर्जरी एक प्रकार की है? बैरिएट्रिक सर्जरी, वेंट्रिक्युलोपेरिटोनियल शंटिंग, यूरिनरी डाइवर्जन, सिग्मॉइड कोलोस्टमी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, बैरिएट्रिक सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जरीज इन्वॉल्व्स ट्रांसवर्स एंटीरियर कैल्पोटमी विथ कैल्पोटमी अप टू द इंटीरियर ऑफ द urinary bladder and posterior calpotomy with dissection of the areola and peritoneum upward up to the internal os is Michaelis plan operation, Shirodkar operation, Ripes operation and Stopa operation. Correct answer is option 2, Shirodkar operation.